Hello guys, I'm MK Roy. In last lesson we have studied what is measurement, how measurement is done with the help of standard chosen. हमने उसे बोला था एक यूनिट कि standard of the same kind chosen to compare the physical quantity is called unit. Measurement is the comparison of the physical quantity with the given or chosen standard of the same kind. अगेन हमने क्या प्राप्त किया था? हमने प्राप्त किया कि मेजर्ड वैल्यू चेंज नहीं होता है यदि साइज ऑफ यूनिट को चेंज किया जाए। क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज वी हैड मेजर्ड वैल्यू इक्वल्स n इंटू यू। इफ यू चेंज दिस u साइज ऑफ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑल्सो चेंज, सो द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। यहां तक हमने देखा था। नाउ गाइस वी शैल स्टार्ट हियर types of physical quantities and their respective units. Also we shall consider here what are the basic units and supplementary units, and again we shall discuss here very important fundamental thing that how the supplementary units are converted into degrees, then minutes and seconds, which will be very much required in case of numerical problem. Guys, there are so many types of physical quantities. एंड अमंग ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसे मेजरमेंट करने की जरूरत होती है, पहले बताया कि फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के हो सकते हैं। कुछ क्वांटिटी जैसे है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जो आपस में किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम की बात जब मैं करता हूं, मास, लेंथ और टाइम की बात करता हूं, तो इंडिपेंडेंट है ये तीनों। कैसे इंडिपेंडेंट है? मास को लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, मास को लेंथ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेंथ को टाइम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, टाइम को मास से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल्सो वी कैन से दैट दिस डू नॉट डिपेंड अपॉन वन अनदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। मैकेनिक्स में सिर्फ बात कर रहा हूं। इन मैकेनिक्स we shall have mass, length and time as the independent physical quantities, and their respective units will be known as fundamental or base or independent units, right? लेकिन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज इन सबको छोड़ के हमारे पास है जो किसी न किसी पर डिपेंड करते हैं। These are dependent physical quantities and these will be known as derived physical quantities. Let us consider here, suppose I have taken here the length as independent physical quantity. Okay, then if we talk about the area, that is area, capital A से denote कर रहा हूं, if you talk about this area as a physical quantity, this is automatically obtained with the help of this length, which is itself independent physical quantity, because area equals length into breadth. Length into breadth. Length is L, that is length L. Breadth is also one type of length measurement. So length is square. It means that area is automatically obtained if we decide length as a independent physical quantity. Similarly, इसके लिए मेहनत नहीं लगा, उस लेंथ से ही आ गया वो। Similarly, if you talk about the length and time as the independent physical quantity, then if you divide this length by time, distance per unit time, that will be equal to speed. So what we have got is speed is the derived physical quantity or dependent physical quantity, and which is depending upon, किस पर डिपेंड कर रहा है वो? लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और ये अगर पता हो जाए हमें कि कौन सा क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और किस पर वो डिपेंड कर रहा है, तो बहुत इजी वे में हम उसके यूनिट को निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। लेंथ का यूनिट पता होगा, टाइम का यूनिट पता होगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा यूनिट्स को। लेंथ और टाइम के यूनिट्स को अगर यहाँ डिवाइड किया जाए तो स्पीड के यूनिट को प्राप्त किया जा सकता है। क्लास 9 तक में हमने पढ़ा है लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेल नोन SI unit of this speed and velocity again. So suppose I decide here mass, length and time as the independent physical quantities, right? So आप अगर इन तीनों को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बोलते हो, डिसाइड कर चुके हो,
तो एक क्वांटिटी हमने लिखा सपोज मोमेंटम। उन्हीं सब फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा मैं कर रहा हूं जो पहले कहीं ना कहीं आया हुआ है, 9 तक में आया हुआ है। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास इज अगेन m, mass m, velocity is speed, that is length per unit time. So what we have got, this is nothing but mass यानी kg meter per second. So kg meter per second, and this is the well known SI unit of what? Momentum, mass into velocity. इसका मतलब what we have got, conclusion क्या है हमारा? There are two types of physical quantities. One is independent physical quantities which cannot be obtained from one another either by division or multiplication, and second type of physical quantities are known as dependent physical quantities or derived physical quantities, and these quantities will be automatically obtained. चिंता नहीं करना है, या तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, किसी दो को, तीनों को, या तो डिवाइड करो। कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आएंगे और वो सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहलाएंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई हैव लिस्टेड हियर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज नॉन एज फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेट अस कंसिडर हियर फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एज आई हैव डिस्कस्ड हियर that these are independent of one another, these cannot be derived from one another. Okay, so definition लिख सकते हो आप कि those physical quantities which cannot be derived from one another, or the physical quantities which are not dependent on one another, or the physical quantities which are independent of each other are called base physical quantities or fundamental physical quantities. What are these fundamental physical quantities? जब हम मैकेनिक्स की चर्चा करेंगे फिजिक्स के ब्रांच में, हर एक ब्रांच में नहीं, मैं एक लिस्ट दूंगा यहां हर एक ब्रांच का कि हर ब्रांच में वो जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज होंगे वो कौन कौन से होंगे। बट अभी मैकेनिक्स में बात कर रहा हूं, मोशन चैप्टर में बात करूंगा, है ना, उसमें जो बात करूंगा वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज का लिस्ट बनाएंगे हम लोग, और वो होगा मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, so these are mass, length and time. These are base physical quantities, mass, length and time only in mechanics, right? इसके अलावे और होंगे जिसको मैं लिस्ट आउट करूंगा। इन शॉर्ट, मास m से लिखता हूं, लेंथ को l से लिखता हूं, टाइम को t से लिखता हूं कैपिटल में। ओके, दीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, आपस में डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पर। मास को लेंथ से नहीं, लेंथ को टाइम से नहीं, टाइम को मास से नहीं, कोई एक दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन लिख सकते हैं, पता तो चल चुका है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम ईदर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दो चीज, ईदर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ किसका? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फंडामेंटल में कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम। इस मास, लेंथ, टाइम को अगर मैं डिवाइड करूं, किसी दो को या तीन को मैं साथ लूं और मल्टीप्लाई करूं, और दोनों करूं, मल्टीप्लाई और डिवीजन साथ साथ, देन जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? हमने उसे डिराइव किया कहीं से, व्युत्पन्न हुआ है वो कहीं से। कहां से हुआ है? बेस फिजिकल क्वांटिटी से हुआ है। ठीक है ना? सो डेफिनेशन क्या हुआ? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम ईदर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल के रूप में हमने पहले लिया है भी, वॉल्यूम आप लेते हो, वॉल्यूम इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम कैन बी रिटन एज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिख रहा हूं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप का अलग अलग वॉल्यूम का फॉर्मूला, बट दिस वॉल्यूम कंटेन्स लेंथ, breadth and height. Length, breadth is also length, height is also length, so it contains 3 times length. Volume contains 3 times length. It means that it contains length to the power 3,
और लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होगा, पहले जो जानते हैं उसी को ले रहा हूं मैं। पहले क्या जानते हो, लेंथ का यूनिट मीटर है, सो इट इज नथिंग बट मीटर क्यूब। बखूबी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लास 10th में हमने यूज किया मैथमेटिक्स में। वॉल्यूम सिलेंडर का निकालो, चाहे स्फीयर का निकालो, हेमिस्फीयर का निकालो, किसी का भी निकालो। सो वॉल्यूम इज व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, वॉल्यूम अपने आप आ गया यदि मैं मास, लेंथ और टाइम को जानता हूं। अभी कौन सा यूज हुआ, सिर्फ लेंथ यूज हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार से फोर्स ले लिया जाए, फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लास 9th में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, F इक्वल्स मा, क्या बोलते थे इसको, ma मा, और ma सपोज कर दिया हमने। फोर्स, मास इज व्हाट, दिस इज मास, सो दिस इज अगेन मास। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी थोड़ा सा डेफिनेशन पर तो जाना होगा, बेसिक डेफिनेशन अगर हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डेफिनेशन अगर पता हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द यूनिट्स, रेस्पेक्टिव यूनिट्स, राइट। सो देखिए यहां, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज मास, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में भी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वही लेंथ और टाइम है, कैसे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम, और इसका चेंज यानी फिर से चेंज, L/t²। सो दिस इज नथिंग बट मास, लेंथ एंड t टू द पावर -2, मास, लेंथ एंड t स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा -2। मिला के इसमें है क्या, मास है, लेंथ है और टाइम है। वही मास, लेंथ और टाइम हर एक फिजिकल क्वांटिटीज में आ रहे हैं जो मैकेनिक्स में होंगे, राइट। अभी मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं, फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो हियर इज इन फोर्स वही मास, लेंथ और टाइम है, कैसे, मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। सो व्हाट कैन बी रिटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं फोर्थ क्वांटिटी नहीं आ रहा मेरे पास, चौथा क्वांटिटी नहीं आ रहा है, वही 3 में घूम फिर के आना है। चाहे मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, यहां देखो डिवाइड हुआ, टाइम डिवाइड हुआ। सो इधर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से जो जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएंगे वो सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहलाएंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब जिसको लो, मास, लेंथ एंड टाइम को छोड़ के जो भी आप बोल दो वो सारे कैसे होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। ओके, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। MKS सिस्टम, फर्स्ट वन, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, राइट। इन CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। FPS मीन्स फुट, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, फुट। P फॉर पाउंड, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड। ये तीनों में सेकेंड सेम है। सो फंडामेंटल क्या है हमारे पास, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। दिस फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं उसे, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अब यूज नहीं कर रहे हैं हम। इस सिस्टम हैज बीन मॉडिफाइड हियर। और क्यों मॉडिफाई हुआ, क्योंकि इस सिस्टम में थोड़ी कमी रह गई जिसे मॉडिफाई किया गया। कमी क्या थी कि इस सिस्टम में एक तरह के एनर्जी का यूनिट एक नहीं हुआ था, एंड दिस वाज वेरी बिग प्रॉब्लमेटिक थिंग कि एनर्जी काइनेटिक भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है, हीट एनर्जी भी हो सकता है, साउंड एनर्जी भी हो सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकता है। सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर। और अगर सारे एनर्जी को, अलग अलग एनर्जी को के अलग अलग यूनिट्स को अगर जानना हो तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इतने सारे यूनिट्स हमारे पास आएंगे कि याद रखना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो 3 में है तो पता नहीं चलता है किसके यूनिट को क्या लिखना है। सो क्या प्रॉब्लम आया था कि जितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उन सभी का अलग अलग यूनिट होता था। किसमें, MKS सिस्टम में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में। बाद में इसे मॉडिफाई किया गया और नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम। हमने पहले लेसन में बताया था कि वो पेरिस में, फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वहां डिसाइड हुआ
और ये पता किया गया, ये फिक्स किया गया कि वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल हैव वन यूनिट। जैसे एनर्जी, साउंड एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, वट एवर टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर विल बी वन यूनिट। और वो क्या लिया गया बेटा? जूल लिया गया। सो एमकेएस सिस्टम में उसे जूल। अब किसी तरह की एनर्जी की बात करो, क्या मैं बोलता हूं उसका यूनिट? जूल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया गया और उसका फायदा यह हुआ कि हमारे पास बहुत थोड़े से यूनिट बच गए। अभी मैं दिखा रहा हूं लिस्ट में कि उतने ही यूनिट में, थोड़े से यूनिट्स में, और पूरा संसार चल रहा है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, हर एक ब्रांच का, राइट। सो हियर एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? एसआई सिस्टम। उल्टा करके क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फायदा क्या हुआ इसका? कि इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल हैव वन यूनिट। ओके, नाउ अब मैं यहां लिस्ट आउट करूंगा कि इस एसआई सिस्टम में, क्योंकि फायदा तो हुआ, इसका बेनिफिट हुआ कि अब लिस्ट बड़ा छोटा हो गया जिसे याद करना है ना। वो लिस्ट में देने जा रहा हूं कि व्हाट आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। So guys, there are 7 base quantities in different branches of science and these are listed over here. I have listed 7 base quantities and these are mass, length, time जो पहले 3 हुआ था बेसिक, electric current other branch of physics, temperature, luminous intensity and amount of substance। सारे आ गए इसमें, और ये साथ में ही सारे ब्रांच के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो यूज हो रहे हैं। तो बड़ा फायदा हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम का जो मॉडिफाइड फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें छोटा सा लिस्ट बन गया हमारे पास और पूरा संसार समा गया। ठीक है, याद करना बड़ा आसान हो गया। मास इज किलोग्राम, एसआई यूनिट इज किलोग्राम, सिंबल इज केजी, दिस इज मीटर, एम, टाइम इज सेकेंड, दिस इज एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, AMPER एम्पियर है ना, साइंटिस्ट का नाम कैपिटल ए, नोटेशन इज कैपिटल ए, टेम्परेचर इज केल्विन कैपिटल के, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, दैट विल बी स्टडीड इन लाइट चैप्टर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD कैपिटल C स्मॉल d, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड दिस इज कॉल्ड MOL मोल। जो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो, जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में। उसके अलावा अगर एंगल मेजर करना हो, 2 डायमेंशनल एंगल हो चाहे 3 डायमेंशनल एंगल मेजर करना हो, अगर मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे? तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बनाए गए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भाई मेरे पास। 2 डायमेंशनल एंगल के लिए, जैसे ये बोर्ड 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया, इस पर ये एंगल सबटेंड हो गया, दिस विल बी एक्सप्रेस इन डिग्री। ठीक, सपोज ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के द्वारा किसी आर्क लेंथ के द्वारा एक एंगल सबटेंड किया गया, ये आर्क के द्वारा ये एंगल सबटेंड किया गया, दिस इज ऑल्सो प्लेन एंगल बिकॉज these 2 angles are made on this 2-dimensional plane। 2 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया गया इंटरसेक्ट करने के बाद। लेकिन 3 डायमेंशनल एंगल भी हो सकता है हमारे पास। सपोज एक छाता लिया जाए, अम्ब्रेला लिया जाए और उसे ओपन किया जाए, हल्का ओपन किया जाए, तो जो स्पोक होंगे उसके स्पोक्स, ये 2 डायमेंशनल यहां दिखेगा आपको। लेकिन यहां अगर आप देखो तो छाते का जो सारा स्पोक होगा, चारों तरफ से होगा, वो जो एंगल सबटेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल एंगल बोलेंगे। यहां नहीं बना सकते आप इसे, ये एंगल, दैट विल बी द 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, सो 2 तरह का एंगल को मेजर करने के लिए भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज है, जिनका नाम है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल रेडियन में लिखते हैं, RAD सिंबल होता है। सॉलिड एंगल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है स्टेरेडियन, उसको SR कैपिटल S और स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। ओके, हमें यहां चर्चा करना है ये प्लेन एंगल का, जो इस 11th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। वहां पर उससे सवाल हम लोग बनाएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो इसी चैप्टर में बनाना होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाएगा। ओके, तो गाइज दिस वर द इंट्रोडक्शन of physical quantities, types of physical quantities and their units। 7 basic units I have given you and 2 supplementary units I have given you, plane angle and solid angle, right? But plane angle is very important, and in that plane angle radian will be the unit, and what is that radian and how radian is related to degree,
हाउ रेडियन इज रिलेटेड टू मिनट, हाउ रेडियन इज रिलेटेड टू सेकेंड, राइट। सबके बीच में एक रिलेशन है। अब ये मिनट और सेकेंड, टाइम का मिनट और सेकेंड नहीं है बेटे, मिनट और सेकेंड भी एंगल का यूनिट है। अब वो कितना बड़ा एंगल होता है, किसे मिनट कहते हैं, किसे सेकेंड कहते हैं, इन सारे बातों को चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में। ओके, टिल देन बाय।